زہران نے سنان کو دیکھ کر کہا۔ وہ چاروں اپنی گاڑیوں میں بیٹھے اور سنان کے ڈیسائیڈ کی گئے ریسٹورنٹ کی طرف چلے گئے۔ حیدرآباد کے قریب خان حویلی اپنی پوری شان و شوکت سے موجود تھی، جس کے سرپرست داجی تھے، داجی جن کا نام شیر خان تھا۔ داجی کی شادی ان کی چچا زاد کزن خالدہ سے ہوئی تھی۔ داجی کی 3 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑی ہادیہ بیگم تھی۔ ان کی شادی انہوں نے اپنے دوست کے بیٹے ہمدان سے کی تھی۔ ہمدان صاحب اپنی ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھے۔ ہادیہ بیگم اور ہمدان صاحب کی 2 اولادیں تھیں۔ بڑا زہران تھا جو کہ 23 سال کا تھا اور کراچی یونیورسٹی سے گریجویٹ تھا، اور اس کے بعد حمزہ تھا جو کہ 21 سال کا تھا اور وہ بھی کراچی یونیورسٹی سے BS کامرس کی 7ویں سیمسٹر میں تھا۔ ہادیہ بیگم شادی ہو کر حیدرآباد سے کراچی آئی تھیں۔ داجی کی دوسری اولاد راحیل تھے، جن کی شادی ان کی خالہ زاد فرحین سے ہوئی تھی۔ راحیل صاحب اور فرحین بیگم کی 2 اولادیں تھیں، بڑی عریض جو کہ 22 سال کی تھی، اور اس کے بعد عائدہ تھی جو کہ 19 سال کی تھی اور ابھی اس کا ایڈمیشن کراچی یونیورسٹی میں ہوا تھا۔ داجی کی تیسری اور آخری اولاد سہیل صاحب تھے۔ ان کی شادی ان کی یونی فیلو ثانیہ سے پسند کی ہوئی تھی۔ سہیل صاحب اور ثانیہ بیگم کی بھی 2 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑا اہل تھا جو کہ 22 سال کا تھا اور وہ بھی کراچی یونیورسٹی سے BS کامرس کے آخری سیمسٹر میں تھا۔ پھر معصومہ تھی جو کہ 19 سال کی تھی۔ معصومہ اور عائدہ کی پیدائش میں چند مہینوں کا ہی فرق تھا۔ دونوں کا ابھی ساتھ ہی کراچی یونیورسٹی میں BS ایجوکیشن میں ایڈمیشن ہوا تھا۔ داجی لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف تھے کیونکہ ماضی میں جو کچھ ہوا تھا اس پر وہ آج بھی لوگوں کی باتیں اور طنز سن کر پچھتاتے تھے، اس لیے وہ لڑکیوں کو کھلی چھوٹ دینے کے حق میں نہ تھے۔ اس لیے انہوں نے عائدہ کے نکاح کا فیصلہ کیا تھا۔ نکاح تو وہ معصومہ کا بھی کرنا چاہتے تھے مگر اہل نے ان کو ایسا نہیں کرنے دیا تھا اور ان کے آگے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اہل داجی کا لاڈلا پوتا تھا، اس لیے داجی اس کے آگے ہار گئے تھے۔ زہران اور اہل اسکول سے ساتھ تھے، پھر ان کے ساتھ حمزہ بھی آ گیا تھا جبکہ اہل کالج سے ان کے ساتھ تھا۔ ان چاروں نے مل کر بزنس کھولا تھا، پر ابھی بزنس کو صرف زہران دیکھتا تھا جبکہ وہ تینوں یونی کے بعد وہاں جاتے تھے۔ صحیح طرح سے بزنس جوائن کرنے کا ارادہ یونی سے گریجویٹ ہونے کے بعد تھا۔ شام کے 6 بج رہے تھے جب مہاروش فرحان ولا میں داخل ہوئی۔ لاؤنج میں ہی اسے فاطمہ بیگم نظر آئیں۔ السلام علیکم خالہ جانی۔ مہاروش نے اونچی آواز میں فاطمہ کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بچہ؟ فاطمہ بیگم نے پیار سے مہاروش کی پیشانی چومی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں خالہ جانی، آپ کیسی ہیں؟ مہاروش نے ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اتنے دنوں بعد کیوں آئی ہو؟ فاطمہ بیگم نے ناراض لہجے میں سوال کیا۔ بس کچھ دنوں سے طبیعت تھوڑی خراب تھی، دل ہی نہیں کر رہا تھا کہیں آنے جانے کا، مہاروش نے جواب دیا۔ کیوں، کیا ہوا تھا میری بچی کو؟ فاطمہ بیگم نے اس کے ماتھے کو چھوا تو وہ مسکرا دی۔ او ہو، کچھ نہیں ہوا تھا، بس نزلہ زکام تھا، اب میں بالکل ٹھیک آپ کے سامنے بیٹھی ہوں۔ مہاروش نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا۔ خیال کیا کرو اپنا، بلکہ میں تو آج بھی کہوں گی کہ چھوڑو ہاسٹل کو، میرے پاس آ کر رہو۔ فاطمہ بیگم نے ہمیشہ کی طرح اسے ہاسٹل چھوڑنے کو کہا۔ ان سب باتوں کو چھوڑیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ انکل کہاں ہیں؟ مہاروش نے بات گھمائی۔ آفس ہیں، کچھ دیر تک آتے ہی ہوں گے، آج تھوڑے لیٹ ہو گئے ہیں، فاطمہ بیگم نے جواب دیا تو ماہ سر ہلانے لگی۔ فرحان صاحب 5:30 بجے تک گھر آ جایا کرتے تھے لیکن آج ان کی بزنس کی میٹنگ تھی۔ ماہ اوپر آؤ۔ حالے کی آواز پر ماہ نے اوپر دیکھا تو حالے کو کھڑا پایا۔ وہ ضرور ماہ کو اپنے روم کی کھڑکی سے آتے ہوئے دیکھ چکی تھی۔ آ رہی ہوں حالے، صبر کرو۔ ماہ نے حالے کو گھورا تو وہ منہ بناتی واپس چلی گئی۔ فاطمہ بیگم ہنسی۔ بالکل پاگل ہو گئی ہے یہ لڑکی، انہوں نے بڑبڑاہٹ کی۔ کیا بنا رہی ہیں آج؟ اتنے دنوں سے آپ کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا، ماہ نے لاڈ سے فاطمہ بیگم کے گرد بازو پھیلا کر کہا۔ تم بھی اتنے دنوں بعد آئی ہو، جو کہو گی وہ بنا دوں گی، فاطمہ بیگم مسکراتے ہوئے بولی۔ ماہ کو سوچنے لگی۔ چکن جلفریزی کھاؤں گی آج میں، ماہ چند لمحوں بعد مسکرا کر بولی۔ فاطمہ بیگم کو بے اختیار اپنی بہن یاد آئی۔ وہ شکل و صورت میں بالکل اپنی ماں فرزانہ جیسی تھی اور اس کی پسند بھی فرزانہ بیگم سے بہت ملتی تھی۔ فاطمہ بیگم ماہ کو دیکھ کر سوچنے لگیں، ایسے کیا دیکھنی ہے خالہ جانی؟ کیا آپ میرے لیے چکن جلفریزی نہیں بنا سکتی؟ ماہ نے شرارت سے کہا۔ ارے ایسا کس نے کہا، میری بیٹی جو کہے گی وہ بنا دوں گی میں۔ اچھا چلو حالے کے پاس جاؤ تم، ورنہ وہ پھر سے چلائے گی۔ فاطمہ بیگم کی بات سن کر وہ اوپر حالے کی طرف چلی گئی۔ مہاروش اوپر آئی تو حالے بیک گراؤنڈ سے ٹک لگا کر لیٹی ہوئی فون یوز کر رہی تھی۔ ماہ کو دیکھ کر حالے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کیسی ہو؟ ماہ نے سوال کیا۔ تمہارے سامنے ہی ہوں، حالے نے منہ بنا کر کہا۔ سنان بھائی سے بات نہیں کی کیا تم نے؟ ماہ نے پوچھا۔ میسج کیا تھا میں نے، دوستوں سے ملنے گئے ہیں وہ، 1.5-2 گھنٹے لگیں گے انہیں آنے میں۔ حالے کے جواب پر ماہ نے سر ہلایا۔ کچھ دیر وہ دونوں بیٹھ کر باتیں کرتی رہیں اور پھر فرحان صاحب کے آنے پر وہ دونوں نیچے چلی گئیں۔ ان کو منانا جو تھا۔ رات 8 بجے سنان گھر میں داخل ہوا، سب اسے ہال میں ہی نظر آ گئے سوائے فاطمہ بیگم کے، وہ کھانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا تو حالے نے اسے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔
वालेकुम सलाम भाई, शुक्र है आप घर आ गए, मैं कब से आपका वेट कर रही थी। सबने सनान का सलाम का जवाब दिया और हाले सनान के सीने से लगकर बोली, सॉरी नूर, मैं दोस्तों के साथ था इसलिए लेट हो गया। सनान ने हाले को सॉरी किया और सोफे पर बैठ गया। कैसी हो माँ, तुम कब आई? सनान ने माँ रविश को मुखातिब किया। ठीक हूँ, शाम में आई थी, माँ ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तो सनान ने सर हिलाया और फरहान साहब के साथ बातें करने लगा। खाना लग गया है, आ जाएं। फातिमा बेगम ने सबसे कहा, मैं खा कर आया हूँ, आप लोग खाएं, मैं चेंज कर लूँ। सनान ने कहा तो सबने सर हिलाया। मेरी बात याद है ना, हाले ने सवालिया नज़रों से देखते हुए कहा। तो सनान ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। हाले के होंठों पर मुस्कुराहट आई थी। वो सनान से पहले ही कॉल पर बात कर चुकी थी कि वो उसकी सिफारिश करे। सनान को मनाने में उसको बस 5 मिनट लगे थे। माँ रविश और हाले दोनों मिलकर फरहान साहब को भी मना चुकी थीं, जो कि ज़्यादा मुश्किल ना था। फातिमा बेगम हाले से खफा खफा घूम रही थीं। उनकी एक ही बेटी थी, वो भी हॉस्टल जाने की ज़िद कर रही थी। उनका दिल किसी सूरत नहीं मान रहा था, मगर हाले जानती थी सनान फातिमा बेगम को मना लेगा। आयदा की आंखें खुली थी तो उसका सर भारी हो रहा था। वो उठकर बैठ गई। साइड टेबल पर पड़े फ़ोन में टाइम देखा तो रात के 7 बज रहे थे। वो तकरीबन 4:30 बजे के बाद सोई थी। उसे कमरे में मासूमा कहीं नज़र नहीं आई। उसके दिमाग में फिर से दादी की बातें गर्दिश करने लगीं। तो क्या दादी मुझ पर भरोसा नहीं करते? उसने दिल ही दिल में खुद से सवाल किया। अगर उनको मुझ पर भरोसा होता तो वो मुझे लाला के साथ जाने देते, जहरान से मेरा निकाह हरगिज़ ना करवाते। वो दिल ही में बोली। आंखें फिर से नम होने लगीं। आयदा उठ गई तुम? अपनी माँ की आवाज़ पर उसने दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ फरहीन बेगम खड़ी थीं। वो उसके पास आकर बैठी तो वो खाली नज़रों से उन्हें देखने लगी। कैसी तबीयत है मेरी शहज़ादी की? उन्होंने आयदा की पेशानी चूमी, मगर वो बगैर कोई तासुर दिए खाली नज़रों से फरहीन बेगम को देखती रही। हादिया बाजी आई है। उन्होंने मुस्कुराकर उसकी फूफो का नाम लिया। उनका नाम सुनकर आयदा की आंख में अटका आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर बाहर निकला, जो फरहीन बेगम ने अपने अंगूठे से साफ किया। हादिया बेगम आयदा को शुरू से ही बहुत पसंद थी। वो आयदा को बहुत प्यार करती थी, मगर उसने ख्वाब में कभी नहीं सोचा था कि वो उनकी बहू बनेगी। हादिया बेगम जब भी हवेली आती थी तो वो बहुत खुश होती थी और फिर उनके साथ ही चिपकी रहती थी, जहरान की गैर मौजूदगी में। मगर इस बार उनके आने से उसे ज़रा भी खुशी नहीं हुई थी। हादिया बेगम की कोई बेटी ना थी, मगर उनको शुरू से ही यही कहना था कि आयदा फरहीन की नहीं बल्कि उनकी बेटी है। चलो शाबाश, उठो और फ्रेश हो जाओ, कब से इंतज़ार करेंगे वो तुम्हारा, फरहीन बेगम ने कहा और उसे बेड से उठाना चाहा। क्यों इंतज़ार करेंगे वो मेरा? आयदा के सवाल पर उन्हें हैरत हुई। क्या मतलब है? तुम्हारा फुप्पो हैं वो तुम्हारी? फरहीन बेगम ने आयदा को आराम से कहा। फुप्पो हैं तो फुप्पो ही रहने दे, क्यों दादी उन्हें मेरी सास बनाने चले हैं? ना चाहते हुए भी उसका लहजा तल्ख हुआ। आयदा, ये दादी का फैसला है और हम में से किसी को भी इस फैसले पर कोई एतराज़ नहीं। वो बोल रही थी जब आयदा बीच में बोली। उनके फैसले पर क्यों किसी को कोई एतराज़ नहीं है? आयदा ने अपने आंसू रोककर सवाल किया। हम में से किसी को इसलिए एतराज़ नहीं है क्योंकि दादी के फैसले में कुछ गलत नहीं है, और जो कुछ माजी में हो चुका तो तुम जानती ही हो ना। फरहीन बेगम ने उसके रुखसार पर अपना हाथ रखा। आप में से किसी को एतराज़ नहीं है, मगर मुझे है मामा, और ये मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला है। आप लोग कैसे कह सकते हैं कि इसमें कुछ गलत नहीं है? वो अपने आंसुओं को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। मासूमा के सामने वो कमज़ोर पड़ रही थी, मगर अपनी माँ के सामने नहीं पड़ना चाहती थी। मगर यहाँ भी उसका ज़ब्त जवाब दे गया और वो रो पड़ी। मेरी बच्ची बस करो, सिर्फ निकाह हो रहा है, रुखसत नहीं कर रहे हम तुम्हें। फरहीन बेगम ने उसे अपने सीने से लगाया। मामा, जब निकाह हो रहा है तो एक दिन रुखसत भी कर देंगे। अम्मी, मैं कैसे रहूँगी उसके साथ? वो रोते हुए बोली। तुम फिक्र मत करो, इतनी जल्दी रुखसत थोड़ी करूँगी मैं अपनी शहज़ादी को, और देखना तुम खुश रहोगी। जानती हो ना हादिया कितना प्यार करती है तुमसे। उन्होंने मुस्कुराकर आयदा से कहा। उसका चेहरा जर्द हो रहा था। उन्होंने उसके माथे पर हाथ रखा तो उन्हें ऐसे लगा जैसे किसी जलते हुए अंगारे पर हाथ रख दिया हो। आयदा, इतना तेज़ बुखार है तुम्हें तो मेरी जान, फिक्रमंद लहजे में बोली। मगर आयदा ने कोई जवाब ना दिया और खामोश आंसू बहाती रही। वो कुछ बोलने ही लगी थी जब दरवाज़ा नॉक हुआ। क्या मैं अंदर आ जाऊँ? हादिया बेगम की आवाज़ सुनकर आयदा ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और जल्दी से उठकर वॉशरूम चली गई। अरे भाई, तुम्हें भी इजाज़त की ज़रूरत है क्या? फरहीन बेगम ने दरवाज़ा खोलकर कहा तो वो मुस्कुरा दी और अंदर दाखिल हुई। आयदा कहाँ है? हादिया बेगम ने फरहीन बेगम को सवालिया नज़रों से देखते हुए कहा। तबीयत ख़राब हो गई है आयदा की, सोई हुई थी, फ्रेश होने वॉशरूम गई है, फरहीन बेगम ने कहा और कमरा समेटने लगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरी बच्ची कैसी है? आयदा वॉशरूम से बाहर आई तो फरहीन बेगम ने उसे गले लगाया। वालेकुम सलाम, ठीक हूँ मैं, आप कैसी हैं? उसका दिल रो रहा था, मगर वो खुश दिली से हादिया बेगम से मिली। उसकी तबीयत ख़राब थी, इसलिए फरहीन बेगम उसके लिए खाना लेने चली गई ताकि कुछ खाकर मेडिसिन ले ले। हादिया बेगम काफ़ी देर उसके पास बैठी रही और खाना भी उन्होंने ही उसे ज़बरदस्ती खिलाया। हादिया बेगम से बात करते टाइम बार बार उसकी आंखें नम हो रही थीं। उन्होंने 2 दिन पहले उससे बात की थी, तब तक तो वो बिल्कुल ठीक थी, मगर आज उन्हें वो किसी भी तरह से वो आयदा ना लगी जिससे वो उन्होंने बात की थी। वो उससे इतनी बातें कर रही थी पर आयदा बस हाँ कर रही थी।
वो इतना समझ गई थी कि वो निकाह वाली बात पर उदास है, इसलिए उन्होंने इससे बात करने का सोचा। और खाली बर्तन रखकर जब वापस आईं तो आयदा बैकग्राउंड से टेक लगाकर बैठी किसी गैर मरई नुक्ते को घूर रही थी। आंखों में मोटे मोटे आंसू भरे हुए थे। आयदा बेटा, उन्होंने उसे पुकारा तो उसने जल्दी से मुंह दूसरी तरफ किया और अपने आंसू साफ किए। क्या हुआ है मेरे बच्चे को? उन्होंने आयदा से सवाल किया। कुछ भी तो नहीं हुआ मुझे फूफो, आयदा ने उदास आंखों से मुस्कुराई। उदास हो आज बहुत? किसी ने कुछ कहा है? उन्होंने सवाल किया। कोई कुछ कह ही तो नहीं रहा मेरे हक में, आयदा ने बेख्तियार कहा। आयदा क्या हुआ है, सब ठीक तो है? उन्होंने बेख्तियार पूछा। जी मेरी प्यारी फूफो, सब ठीक है, बस वैसे ही दिल उदास हो गया था, आयदा ने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर कहा। वो अपनी वजह से किसी और को परेशान नहीं करना चाहती थी। अच्छा ठीक है, उदास मत हो, मैंने तुम्हारे निकाह का जोड़ा और जेवर दिखाती हूँ, रुको मैं लाती हूँ। हादिया बेगम मुस्कुराकर बोली और जल्दी से कमरे से निकल गई। वो आयदा को टाइम देना चाहती थी कि वो खुद आकर उनसे अपने प्रॉब्लम शेयर करे, इसलिए उन्होंने उसको मजीद खरीदना बेहतर नहीं समझा। उनके जाते ही आयदा वॉशरूम में गई और फूट फूट कर रो दी। जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख दिया ताकि उसकी सिसकियाँ वॉशरूम से बाहर ना जाएं। आयदा बच्चे कहाँ हो? हादिया बेगम जब कमरे में आई तो हादिया को ना पाकर उसे आवाज़ लगाई। आयदा ने जल्दी से वॉश बेसिन का नलका खोल दिया। चंद लम्हों बाद वो वॉशरूम से बाहर आई और उनके पास जाकर बेड पर बैठ गई तो वो उसे जेवरात दिखाने लगी। आयदा के दिल में बेख्तियार ख्याल आया कि इन सबको यकीन है कि आयदा इनकार नहीं करेगी, तभी तो हादिया बेगम उसके लिए निकाह का जोड़ा और जेवरात भी अपने साथ लाई थी। अगर मैं इनकार कर दूं तो क्या सबका मान टूट जाएगा? उसने दिल ही दिल में खुद से सवाल किया तो उसे जवाब हाँ में मिला। क्या सोच रही हो आयदा? हादिया बेगम ने जब उसे अपनी तरफ मुतवज्जो ना देखा तो सवाल किया। कुछ नहीं, आयदा ने जल्दी से कहा तो हादिया बेगम ने उसका हाथ थाम लिया। आयदा बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम निकाह वाली बात पर परेशान हो और तुम्हारी जगह कोई और होता तो ज़रूर अपने निकाह की बात सुनकर इसी तरह परेशान होता। उन्होंने उसे प्यार से समझाया तो वो खामोशी से उन्हें देखने लगी। ज़हरान खुद भी तुम्हारे साथ निकाह की बात सुनकर बहुत हैरान हुआ था, उसने कभी तुम्हें इस नज़र से नहीं देखा, हादिया बेगम ने कहा। इस नज़र को तो छोड़ें, वो मुझे वैसे भी देखते ही कहाँ हैं। आयदा की ज़ुबान बेख्तियार फिसली तो हादिया बेगम मुस्कुरा दी। आयदा बच्चे, मैं जानती हूँ वो तुम्हें कुछ खास पसंद नहीं करता और उसकी वजह शायद तुम जानती हो, हादिया बेगम ने कहा तो आयदा ने उनकी तरफ देखकर सर हाँ में हिलाया। वो जानती थी कि ज़हरान उसे क्यों पसंद नहीं करता। मेरी बच्ची, वो अरीज को पसंद करता था और उसके जाने के बाद से तुम जानती हो ना, वो बिखर गया था और फिर बड़ी मुश्किल से संभाला था वो। उन्होंने अपने हाथ आयदा के रुखसार पर रखे। आयदा को नापसंद करने की एक और वजह भी थी, लेकिन हादिया बेगम अगर वो वजह बता देती तो आयदा बहुत हर्ट होती और उसके दिल में ज़हरान के लिए बदगुमानी भी पैदा हो जाती और हादिया बेगम ऐसा नहीं चाहती थी। लेकिन ये पहली बात थी, अब उसकी ज़िंदगी में तुम आ रही हो और निकाह के दो बोलों में बहुत ताकत होती है। देखना, ज़हरान को तुम से मोहब्बत हो जाएगी और मेरी तो पुरानी ख्वाहिश है तुम्हें अपनी बेटी बनाने की, हादिया बेगम ने मुस्कुराकर कहा तो वो अपनी नज़रें झुका गई। इस बारे में सोचो, ये कोई ज़्यादा मुश्किल फ़ैसला नहीं है। हादिया बेगम ने अपनी तरफ से उसे समझाने की भरपूर कोशिश की थी। वो जानती थी कि अब आयदा उन्हें मायूस नहीं करेगी। हादिया बेगम बहुत देर बैठी उससे बातें करती रहीं और फिर वो चली गई तो आयदा ने इशा की नमाज अदा की और अपने हक़ में दुआ करने लगी कि अल्लाह जो भी करे वो उसके हक़ में बेहतर हो। उसने मासूमा के नंबर पर मैसेज भेज दिया जिसमें उसने निकाह के लिए हाँ की थी। उसने बहुत सोच समझकर ये फ़ैसला लिया था और सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया था। आज सुबह से हवेली में गहमा गहमी थी और सब निकाह की तैयारियों में मसरूफ़ थे, जबकि आयदा अपने कमरे में अब तक नहीं निकली थी। ज़हरान और सनान ने निकाह से थोड़ी देर पहले आना था, जबकि हमज़ा और आहल रात को ही आ गए थे ताकि वो निकाह की तैयारियों में मदद करवा सकें। निकाह हवेली में ही होना था क्योंकि सिर्फ घर के ही लोग निकाह में शामिल थे। मासूमा जो आयदा के पास जा रही थी उसको फरहीन बेगम ने रोका। जी ताई अम्मी, बेटा आयदा के पास जा रही हो ना, जाओ मैं नाश्ता और दवाई भिजवा देती हूँ, नाश्ता उसे करवा देना और फिर दवाई भी दे देना, ठीक है? फरहीन बेगम ने पूछा तो मासूमा ने अस्बात में सर हिलाया तो फरहीन बेगम ने नाश्ते और दवाई का बोला क्योंकि रात से आयदा को बुखार और सर दर्द था। जी ठीक है, मासूमा बोलते साथ ही आयदा के कमरे में आ गई। अंदर आई तो पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने साइड पर हाथ मारकर स्विच बोर्ड से एक दो लाइट ऑन की। आयदा यार उठ जाओ, देखो सुबह के 11 बज गए हैं और तुम अभी तक सो रही हो। मासूमा बोलते साथ ही खिड़कियों की तरफ आई और पर्दे हटाए तो पूरा कमरा रोशन हुआ। आयदा ने मुंदी मुंदी आंखें खोली और मासूमा को घूर कर देखा जो उसे तंग करने आ गई थी। मासूमा तंग मत करो, सोने दो मुझे, आयदा ने बोलते साथ ही अपना सर लिहाफ के अंदर किया और दोबारा आंखें मूंद लें। ओहो मैडम, भूल गई हो तो बता दूं, तुम्हारा निकाह है आज और तुम हो कि अभी तक सो रही हो। जल्दी से उठो, ताई अम्मी नाश्ता भेजने वाली हैं। मासूमा ने बोलते साथ ही उसके ऊपर से लिहाफ खींच लिया, जबकि आयदा की नींद निकाह वाली बात सुनकर भग से उड़ी थी। बाकी उसके जहन से निकल गया था कि उसका निकाह है आज। वैसे भी रात को वो सोई नहीं थी, फजर की नमाज़ पढ़कर ही सोई थी।
आयदा किसी गैर मरई नुक्ते को देखते हुए दोबारा उस शख्स को सोचने लगी जो कुछ ही घंटों में उसके शौहर के रुतबे पर फाइज होने वाला था। ओ मैडम, होश में आ जाओ और जाओ फ्रेश हो जाओ। मासूमा ने उसका बाजू पकड़कर हिलाया तो वो होश में आई और साइड टेबल से अपना कैचर उठाया और अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वो फ्रेश होकर बाहर आई तो मासूमा बेड पर नाश्ता लिए बैठी थी। नाश्ता करने के बाद मासूमा इधर उधर की बातें करने लगी, जबकि उसका साथ देने के लिए आयदा सिर्फ हूँ हाँ करती रही। फिर मासूमा नीचे चली गई तो वो नहाने चली गई और फिर उसने जोहर की नमाज पढ़ी और फिर कुरान की तिलावत करने लगी। कुरान को शेल्फ पर रखकर वो अपने कमरे की खिड़की के पास आई, तभी हवेली का गेट खुला और जहरान की स्याह लैंड क्रूजर पोर्च में आकर खड़ी हुई। आयदा के कमरे से पोर्च का मंजर वाजे नजर आता था। तभी ड्राइविंग सीट से जहरान बाहर निकला। 6 फुट से निकलता कद, स्याह आंखें, स्याह घने बाल, सफ़ेद रंगत, कसरती जिस्म, चौड़े शाने, घनी दाढ़ी मूछ, उस पर गजब उसकी मुस्कुराहट। वो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप था। आयदा बेध्यानी में ही उसे तके गई। जब जहरान को किसी की नज़रों की तपिश महसूस हुई तो वो यहाँ वहाँ देखने लगा। जब उसकी नज़र ऊपर खिड़की में खड़ी आयदा पर गई, एक लम्हे के लिए जहरान की नज़र उस पर ठहर सी गई थी। नमाज स्टाइल में गोल चेहरे के गिर्द दुपट्टा जो उसे पाकीज़ा और मासूम बना रहा था, गोरी रंगत ब्राउन आंखें, उन पर घनी पलकों का पहरा था, कद 4-5, स्याह बाल जो कंधों से नीचे आते थे, गुलाबी होंठ, छोटी नाक और उसके चेहरे पर छाई मासूमियत किसी भी शख्स को उसका गर्विदा कर सकता था। पर एक वो संगदिल था जिसका दिल इस पर पिघल कर ही नहीं दे रहा था। बस सिर्फ एक लम्हा जहरान ने उसे देखा और फिर नफरत से मुंह मोड़ लिया और अंदर की तरफ अपने कदम कर लिए। आयदा की आंख में आंसू आए मगर वो जब्त कर गई। आयदा, जल्दी से ये खाना खाओ, फिर मैं तुम्हें तैयार कर दूँ। मासूमा की आवाज़ पर उसने पलटकर देखा तो वो खाने की ट्रे बेड पर रख रही थी। तो आयदा भी चलती हुई बेड के पास आई और बैठ गई और खाने को घूरने लगी। ओए लड़की, खाना खाने के लिए लाई हूँ, घूरने के लिए नहीं। चलो जल्दी से खाओ। मासूमा ने बोला तो उसने चंद लुक में ही जहर मारे, वरना उसका दिल कर रहा था कि कहीं ऐसी जगह चली जाए जहाँ कोई भी ना हो। खाने के बाद मासूमा बर्तन वापस रखने लगी तो वो हाथ धोने गई। चलो आओ, तुम्हें तैयार कर दूँ। जब बाहर आई तो मासूमा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी बोली, निकाह है, शादी नहीं जो तैयार करोगी। आयदा जब बोली तो लहजा तल्ख था। बहुत जल्दी हो रही है तुम्हारी रुखसती की। मासूमा शरारत से बोली। आयदा खामोश रही। चलो ये पकड़ो कपड़े और जल्दी पहन कर आओ। मासूमा ने उसे कपड़े पकड़ाए और वॉशरूम में धकेल दिया। 5 मिनट बाद वो चेंज करके निकली। माशाल्लाह यार, तुम्हें तो मेकअप की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं करूँगी। मासूमा ने जब आयदा को वॉशरूम से निकलते देखा तो बेसाख्ता माशाल्लाह कहा। आयदा ने पाँव तक आता वाइट घेरदार फ्रॉक पहना था। फ्रॉक पर मोतियों और शीशों से बहुत खूबसूरती से काम हुआ था जो इस पर जच रहा था। फ्रॉक के नीचे चूड़ीदार पाजामा था। चलो भाई इधर बैठो। मासूमा ने आयदा को वैसे ही खड़ा देखा तो उसे बाजू से खींचकर शीशे के सामने लाई और आयदा के नाना करने के बावजूद उसे हल्का फुल्का मेकअप करने लगी। 20 मिनट बाद आयदा तैयार थी। उसने खुद को शीशे में देखा। बालों का जूड़ा बना हुआ था जिसमें से चंद लटें चेहरे को छू रही थीं, जिनको मासूमा ने लोज कर दिया। आंखों में काजल और घनी पलकों पर लगा मस्कारा उसकी आंखें मजीद खूबसूरत बना रहा था। गालों पर हल्का सा ब्लश ऑन और होंठों पर लाल लिपस्टिक। बाकी सब तो ठीक था मगर लाल लिपस्टिक पर उसने मासूमा को घूरा। पागल हो गई हो, रेड लिपस्टिक क्यों लगाई है? वो उसे घूर कर बोली। निकाह है तुम्हारा, दुल्हन को रेड लिपस्टिक ही लगाते हैं। मासूमा ने जैसे उसकी अकल पर मातम किया। ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा निकाह, आयदा बोल रही थी जब मासूमा ने उसकी बात काटी। अरे हाँ भाई, मुझे पता है तुम्हारा निकाह है, रुखसती नहीं, मगर दुल्हन तो तुम ही हो ना, मासूमा ने कहा और टेबल पर पड़ा टिशू का बॉक्स उठा लिया। मासूमा तुम पागल हो मगर मैं नहीं, टिशू दो मुझे। आयदा स्टॉल से उठाकर मासूमा की तरफ मुड़ी। बिल्कुल भी नहीं दूंगी। चलो आओ मैं ज्वेलरी और तुम्हारा दुपट्टा सेट कर दूं, मासूमा ने कहा और टेबल पर पड़ा ज्वेलरी बॉक्स उठाया। उसमें से वाइट कलर का खूबसूरत ग्लोबंद निकाला और आयदा की गर्दन में डाल दिया। ग्लोबंद के साथ के ही झुमके उसके कानों में डाल दिए, साथ ही टीका और झूमर जो सेट के साथ के ही थे उसके बालों में सेट कर दिया। फिर बेड पर पड़ा उसका दुपट्टा उठाया। आयदा कुछ बोलने ही लगी थी जब कमरे का दरवाज़ा खुला। मेरी बच्ची तैयार नहीं हुई क्या अभी? दरवाजे पर हादिया बेगम नुमदार हुई। हो गई है फूफो, बस दुपट्टा सेट करना रह गया है अभी, और देखे ना इसे, मैंने इसको लिपस्टिक लगाई है तो कह रही है मिटाओ इसे, ये क्यों लगाई है? मासूमा ने उनको तफसील से जवाब दिया तो हादिया बेगम नाराज़गी से आयदा को देखने लगी। क्यों भाई, किस खुशी में लिपस्टिक नहीं लगानी? हादिया बेगम के लहजे में नाराज़गी थी। फूफो जान, रेड लिपस्टिक लगाई है इसने, इतनी डार्क है। आयदा ने मासूम सा मुंह बनाया। अरे तो निकाह है, दुल्हन हो तुम, रेड लिपस्टिक ही लगेगी ना? हादिया बेगम ने मुस्कुराकर कहा। अच्छा चलो अब इसका दुपट्टा सेट करो, हादिया बेगम ने मासूमा से कहा तो वो दुपट्टा सेट करने लगी। दुपट्टा वाइट कलर का ही फ्रॉक से मिलता जुलता था जो मासूमा ने पिनों से अच्छी तरह सेट कर दिया। वो इस वक्त दादी के साथ बैठा था जो उसे बहुत कुछ बोल रहे थे मगर उसका दिमाग अलग ही सोचों में गुम था।
اس نے تو اپنی زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا نکاح عائدہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تو اسے اپنی بہن سمجھتا تھا، اور پھر ماضی میں ہوئے واقعے کے بعد سے تو وہ اسے زہر سے بھی بری لگتی تھی، اور اب وہ اس کی شریک حیات بننے جا رہی تھی۔ ارے بھائی، کن سوچوں میں گم ہو، دلہا صاحب کو اپنے دوست کے آنے کی خبر ہی نہیں۔ سنان نے اسے کندھے سے ہلایا تو وہ انہیں دیکھنے لگا۔ ارے تم کب آئے؟ زہران نے سنان سے بغل گیر ہوتے ہوئے کہا۔ بس ابھی ہی آیا ہوں، بھابھی کے بارے میں ذرا کم سوچے گا تو میں تجھے نظر آؤں گا نا؟ سنان نے اس کے کان میں کہا۔ زہران گھرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ داجی وہیں موجود تھے۔ کچھ دیر وہ لوگ وہیں بیٹھے رہے۔ داجی کو مولوی صاحب کے آنے کی اطلاع ملی تو وہ سب باہر ہال میں آ گئے، جہاں اور بھی کچھ قریبی رشتہ دار موجود تھے۔ عائدہ کو لے آؤ، مولوی صاحب نکاح شروع کریں، داجی نے فرحین بیگم سے کہا تو وہ عائدہ کو بلانے چلی گئیں۔ وہ اوپر آئیں تو معصومہ اور عائدہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ میری بچی اتنی پیاری لگ رہی ہے، فرحین بیگم نے عائدہ کو پیار کیا تو وہ خالی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ چلو مولوی صاحب آگے ہیں، معصومہ اس کا گھونگھٹ نکال دو، انہوں نے کہا، اور ساتھ ہی عائدہ کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بیڈ سے کھڑا کیا تو معصومہ نے پاس پڑا ریڈ دوپٹہ اٹھایا اور گھونگھٹ کی طرح سیٹ کیا، اور دوسری طرف سے عائدہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو وہ اسے کمرے سے باہر نیچے ہال میں لے آئیں۔ زہران نے نظر اٹھا کر جب دیکھا تو چند لمحوں کے لیے اس کی نظر وہیں ٹک گئی۔ سفید رنگ کا پاؤں تک آتا فراک اور سر پر لال دوپٹہ تھا، جبکہ نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ کلائی میں گجرے اور جویلری پہنے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ زہران کے دل نے اس بات کا اقرار کیا کہ وہ بہت خوبصورت تھی اور معصوم بھی۔ عائدہ نے نظر اٹھا کر جب دیکھا تو زہران ہوش میں آیا اور اس پر سے اپنی نظر ہٹائی۔ زہران نے آج وائٹ شلوار قمیض پہن رکھی تھی، ہاتھ میں برینڈڈ واچ تھی، جیل سے بال اچھی طرح سیٹ تھے۔ وہ آج وجاہت کا شاہکار لگ رہا تھا۔ معصومہ اور فرحین بیگم نے عائدہ کو زہران کے ساتھ صوفے پر بٹھایا تو عائدہ کی نتنوں سے زہران کی تیز پرفیوم کی خوشبو ٹکرائی جو اس وقت اسے زہر لگی تھی۔ معصومہ صوفے کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی تو اسے خود پر گہری نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس نے اپنا چہرہ موڑ کر دیکھا تو اس کی نظر زہران سے کچھ فاصلے پر بیٹھے اس شخص پر پڑی۔ سفید کرتا شلوار پہنے وہ شہزادوں کی آن بان رکھے صوفے پر بیٹھا تھا، بال نفاست سے سیٹ تھے، کلائی میں گھڑی پہنے وہ اپنی تمام تر وجاہت لیے بیٹھا اسے اپنی شہد رنگ آنکھوں سے دیکھ کم اور گھور زیادہ رہا تھا۔ معصومہ کے دیکھنے پر سنان نے اسمائل پاس کی تو معصومہ اپنا چہرہ موڑ گئی۔ اس بیچاری کے بس میں اور کچھ تھا بھی نہیں۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں، داجی کے الفاظ سن کر عائدہ کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ عائدہ راحیل ولد راحیل خان آپ کو سکہ رائج الوقت بما 10 لاکھ حق مہر کے ساتھ زہران ہمدان ولد ہمدان خان کے نکاح میں دیا جاتا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے سوال پر اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس کے پہلو میں بیٹھی فرحین بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ قبول ہے، وہ جب بولی تو زہران کو اس کی آواز بھرائی ہوئی لگی، اس کی آنکھ سے آنسو نکل کر بے مول ہوا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے اپنا سوال دہرایا۔ قبول ہے، عائدہ نے بہت ہمت کر کے جواب دیا۔ ان کے تیسری بار سوال کرنے پر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی آنکھوں کے پردوں پر اریج کا چہرہ لہرا گیا۔ قبول ہے، اس نے تیسری بار بھی اسے قبول کر لیا۔ زہران کا دل بے اختیار دھڑکا تھا۔ آہل نے جب اس کے آگے نکاح نامے اور پین کیا تو دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے اٹھایا اور سائن کرنے لگی۔ سائن کرتے وقت اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، جو کسی اور کی نظر میں تو نہیں پر زہران کی نظر میں ضرور آیا تھا۔ پھر مولوی صاحب زہران کی طرف متوجہ ہوئے۔ زہران ہمدان ولد ہمدان خان آپ کو سکہ رائج الوقت بما 10 لاکھ حق مہر عائدہ راحیل ولد راحیل خان کو آپ کے نکاح میں دیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے بولنے پر اس نے نظر اٹھا کر عائدہ کی طرف دیکھا جو اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ قبول ہے، اس نے نیٹ کے دوپٹے کے پار موجود عائدہ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ اب بھی دونوں نے نظریں ایک دوسرے سے نہیں ہٹائی تھیں۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ زہران کے آخری دفعہ قبول ہے بولنے پر عائدہ کی آنکھوں سے ایک آنسو بہا تھا جو زہران کی نظروں میں آ گیا تھا۔ عائدہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ مولوی صاحب نے زہران سے بھی سائن لیے اور باقی کارروائی مکمل کی اور پھر اٹھ کر نکاح کی مبارکباد دی۔ داجی نے ان دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دیں اور سب نے مبارکباد دی۔ مولوی صاحب کے جانے کے بعد ہادیہ بیگم نے عائدہ کا گھونگھٹ ہٹا دیا اور بے ساختہ ماشاءاللہ کہا تو زہران نے عائدہ کو دیکھا تو کئی لمحے وہ پلک تک نہ جھپک سکا۔ سنان کے کندھا مارنے پر ہوش میں آیا۔ بس کر سالے، آنکھوں سے کھانے کا ارادہ ہے کیا؟ تمہاری ہی ہے، بعد میں آرام سے دیکھ لینا بھابھی کو۔ سنان نے دانت پیس کر زہران کے کان میں گھس کر کہا۔ زہران کا بس نہیں چل رہا تھا وہ سنان کو کچا چبا جائے، پر بات تو یہی تھی، زہران کا بس ہی نہیں چل رہا تھا۔ زہران یہ رنگ لو اور عائدہ کو پہناؤ۔ ہادیہ بیگم زہران کے پاس آئی اور خوبصورت سی ڈائمنڈ رنگ زہران کو دی، جو ان کو ایسے دکھ رہا تھا کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی۔ ہادیہ بیگم نے گھورا تو عائدہ کی طرف متوجہ ہوا اور اس کے آگے اپنا ہاتھ کیا تو عائدہ نے بھی اپنا کپ کپاتا ہوا مومی ہاتھ اس کی مضبوط ہتھیلی پر رکھ دیا۔ زہران نے اس کا ہاتھ نرمی سے تھاما اور رنگ اس کی چوتھی انگلی میں ڈال دی۔
रिंग के डालते ही आयदा ने अपना हाथ वापस खींच लिया। जहरान ने उसे देखा तो आयदा ने भी देखा और इस खूबसूरत लम्हे की तस्वीर हमजा ने ले ली और दोनों को व्हाट्सएप कर दी। थोड़ी देर बाद मासूमा आयदा को लेकर उसके कमरे में चली गई और जहरान भी अपने कमरे में चला गया। सब इधर उधर हो गए। मगरिब के बाद वो चारों दोबारा कराची के लिए निकले, जबकि हादिया बेगम ने कुछ दिन यहीं रुकना था और हमदान साहब ने कल वापस जाना था। ये दिन इसी तरह अपने अख्ताम पर पहुंचा था। फरहान विला में नाश्ते की मेज़ पर सब मौजूद थे। सरबराही कुर्सी पर फरहान साहब बैठे थे। उनके दाएं तरफ फातिमा बेगम बैठी थीं। उनके साथ ही अरहम बैठा था। फरहान साहब के बाएं तरफ सनान बैठा था और उसके साथ हाले ने सबसे नज़र बचाकर सनान को धोखा दिया तो वो गड़बड़ा गया और उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा तो हाले ने नज़रों ही में इशारे में उसे फातिमा बेगम से हॉस्टल वाली बात करने को कहा तो उसने इस बात में सर हिलाया। वो मामा, मैं क्या कह रहा था कि सनान ने गला खंकारा और बात शुरू की थी। सनान, मैं बता रही हूँ कि अगर तुमने उसकी हमायत करनी है ना तो बात ना करना। फातिमा बेगम ने सनान की बात काट कर हाले की तरफ इशारा किया तो वो मुंह बसोर कर रह गई, जबकि अरहम ने मुस्कुराहट दबाई तो हाले ने उसको घूरा। मामा, हॉस्टल रहने में हर्जी क्या है? वो कौन सा कहीं और जा रही है? यहीं कराची में ही तो है। सनान ने उनको कायल करने की कोशिश की तो हाले ने उसकी बात पर ज़ोरों शोर से सर हिलाया तो फातिमा बेगम ने उसको ज़बरदस्त घुरी से नवाजा। नहीं, यहाँ इतना बड़ा घर है, सब कुछ है, यहाँ तो हॉस्टल रहने की क्या तू? लोग क्या कहेंगे कि घर में जगह ख़त्म हो गई थी जो लौती बेटी को हॉस्टल भेज दिया। इसकी ना फजूल की ख्वाहिशात बढ़ती जा रही हैं। मैं बता रही हूँ आप बाप बेटे को इसको फजूल में सर पर ना चढ़ाएं। फातिमा बेगम ने गुस्से से कहा और आखिर में हाले को झिड़क दिया। अब उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो खाने की मेज़ से उठकर रोते हुए अपने कमरे में भाग गई। वो ऐसी ही थी, छोटी छोटी बातों को दिल पर लेने वाली, और उसके आंसू तो तैयार होते थे कब बाहर निकले। मामा, देखा ना आपने, उसे नाराज़ कर दिया। आपको पता है वो छोटी छोटी बातों पर रोती है, अब नाश्ता भी नहीं करेगी। और देखिए हॉस्टल में माह रविश भी तो उसके साथ है, और वैसे भी खाला ने माह रविश की जिम्मेदारी आपको दी थी। अब हॉस्टल में वो अकेली है, यहाँ भी वो कभी कभी आती है। जब हाले जाएगी तो हम दोनों की तरफ से तसल्ली रहेगी, और वैसे भी जब आपका दिल करेगा मैं हाले को मिलवाने आपसे ले आऊँगा। प्लीज़ मामा मान जाए ना। सनान ने फातिमा बेगम को मनाने की पूरी कोशिश की तो वो सोचने लगी, प्लीज़ बेगम साहिबा मान जाए ना, हमारी एक ही तो बेटी है, उस पर भी आप रोक टोक करती हैं। फरहान साहब जो इस सारे मामले में खामोश थे, जब बोले तो हाले के हक़ में बोले, वैसे भी वो उनकी लाडली बेटी थी।